ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ جن نہیں آ گیا تو کیا حکم ہے میرے آقا, وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں, ابھی فی الحال آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں, صحیح ہے نا. 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھے میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں, تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ, کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا بادشاہ بنا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے, اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو, دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ, تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں. لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو, بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی, اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ, اب نہیں دیکھتے بالکل بھی, اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے. 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں, 50-50 دیکھتے تھے, صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا, محلے والوں نے بلایا, فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے, وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے, محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھ کے بھائی پانی ڈال یار, اس میں 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا, اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا, ٹھیک ہے, اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا ہاں نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی, آگ نہیں لگی بھی, پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار, بالٹیاں بھرو, بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے, پورا چیک کیا بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے, جا سکتا. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرا میں ایک خاتون آئی کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا, بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہے. اس نے کہا ٹھا گولی ماری, بولا ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے, ختم. آسان طریقہ بھائی, ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, اس میں ٹائم لگتا, یہ آتے تھے پہلے ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں, تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوسنیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت ایک ہوتی ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے. یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے
चले जाओगे, समझते हो? तो अंडे वाले बर्गर का उनका मजाक उड़ा रहा हूं जिनके पास जिंगर बर्गर खाने के पैसे हैं, मगर पैसा बचाने के लिए क्या खाते हैं? अंडे वाला बर्गर। और उसमें भी शर्त ये कि बशर्ते कि उनको अंडे वाला जिंगर पसंद ही ना हो, फिर अंडे वाला खा रहे हैं। क्योंकि हम भी कभी कभार अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि पैसे बचाने के लिए, शौक है। और अगर पैसे बचाने के लिए भी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? उसूल देखना चाहिए ना, कि उसूल सही होना चाहिए। खैर, तो बात ये चल रही थी कि नीच सोच का था। वो जिन आया, उसमें ये दिखाया कि क्या हुक्म है मेरे आका। अब आका की जो थिंकिंग थी वो क्या थी? अंडे वाले बर्गर की। आका ने फरमाया यार ये बर्तन धो दे। जिन हैरान, यार मैं तो कोई भाई कोई बंदा मरवाना हो, कोई इमारत दाएं से बाएं करनी हो, बैंक में डकैती डलवानी हो, कोई मुझसे बड़े बड़े काम करवाओ, उसके जहन में ये चीजें आई नहीं थी। उसका सबसे बड़ा काम ही ये था कि बर्तन धुल जाएं घर के। उसने बोला भाई जिन बर्तन धो रहा है बैठकर। हाँ, क्या हुक्म है मेरे आका। फिर वो रगड़ा। आका खुश इस पर हो रहे हैं कि मेरे घर के बर्तन धुल गए। सोच अंडे वाले बर्गर की हो ना। मिसाल बड़ी खानदानी आई है अंडे वाला। असल में ये मिसाल पता है क्यों आई है? खातून का फोन आया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, मैं उससे शादी करना चाहती थी, मुझे कहीं घुमाने ले गया, अंडे वाला बर्गर खिलाया। सही है ना? क्या खिलाया? अंडे वाला। तो फिर उसने मुझे छोड़ दिया। वो उनकी बेचारी जुल्म की दास्तान थी। तो मुझे उस वक्त ख्याल है जो अंडे वाला बर्गर खिलाएगा भाई फिर तो किसी भी टाइम पे छोड़ सकता है। तो ये जो मेरी मिसालें आ रही होती ना, ये इधर उधर सब आप लोग सही सीखता हूं मैं ये। अच्छा, तो बात ये चल रही थी कि वो बोतल वाला जिन जो था उसको कहीं काम पे लगा दिया, ये कर वो कर। तो फिर उसमें दिखाया कि वो जिन की सारी सलाहियतों की ऐसी की तैसी। जब ये आका या मालिक मरा है तो वो जिन किसी होटल में मुलाजमत कर रहा है बेरा बन के, और होटल में क्या लगा रहा है? पोचे। वो जिन का जो काम था ना बड़ी बड़ी इमारतें बनाना दाएं समय, वो सारी सलाहियतें उसमें क्या हो गई? खत्म। तो आप उस जिन के आका की तरह ना सोचें अभी फिलहाल। आप ये सोचें कि कोई फरिश्ता आपके पास आया है और आपसे कह रहा है यार तू जो आज मांगेगा तुझे मिल जाएगा। तो 1 घंटा तो आप अपनी मेंटल जो है ना लेवल उसको ऊपर करने में लगाएं। सही है ना? 1 घंटा तो आप उससे टाइम मांगे, यार मुझे पहले, मैं बहुत अंडे वाले बर्गर खा खा के अभी मेरी जो है ना, मैं ऐसा ना हो कि मेरे पास टाइम कम है और तूने 10 मिनट मुझे दिए मांगने के लिए, तो मैं 10 मिनट में ऐसा ना हो कोई छोटी मोटी चीजें, मुझे तो अभी मेंटल लेवल अपना बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, तो मुझे जरा उस सतह तक जाने दो। जाने में टाइम लगेगा, वरना आप वो अंडे और जिंगर पे आके 10 मिनट आपके पास क्या हो जाएंगे? खत्म। तो 10 मिनट फरिश्ते ने दिए। अब जरा हम सब तसव्वुर करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हम क्या मांगेंगे? मैं आपकी मेंटल अप्रोच देखता हूं कहां तक। सबसे पहली चीज क्या मांगोगे बताओ जी? देखें, आखिरत की बातें ना करें, मगफिरत, जन्नत। अभी हम इस दुनिया में फर्ज कर रहे हैं, दुनिया की अय्याशी में। वो तो मगफिरत तो आखिरत की चीज है ना। किसी काफिर के पास आ गया कोई फरिश्ता जो आखिरत को मानता ही नहीं है, यार तुझे दुनिया में क्या चाहिए? तो दुनिया की चीज बताएं। सबसे पहली चीज क्या मांगेंगे भाई? पैसा। आप पैसा मांगेंगे। और भाई दुनिया के लिहाज से, दुनिया में जो अय्याशी की चीजों में है ना, सबसे पहली चीज क्या मांगोगे? है भाई 4 शादियां मांगेंगे, पिटेंगे। जिस दिन मिल गई उसी दिन बोलेंगे भाई कुछ और मांग लेता हूं। 4 शादियां वाले एक तरफ हो जाएं। अच्छा, आप सदाबहार जवान, सदाबहार कोच सर्विस वालों से ताल्लुकात तो नहीं हो जो कोयटा कोच सर्विस सदाबहार फरिश्ता है? आप, अबे भाई जल्दी बताओ यार, तुम सबसे पहले क्या मांगोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अय्याशी के लिए? शोहरत। अरे भाई शोहरत मांगोगे, कल मर गए। आपने पैसा मांगा, कल फालिज हो गया। तो पहली चीज सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छी सेहत मांगी, ठीक है अच्छी सेहत मिल गई, फिर अगले दिन इंतकाल हो गया। मजा नहीं आया उस्ताद। बेगम सही हो जाए तो बेगम बहुत से लोगों की सही है। वही यार शुक्र है जिन नहीं आया आपके पास। ये अंडे वाले बर्गर की बेगम सही हो जाए, वो नहीं भी सही हुई तो कितने दिन की जिंदगी है यार। या जिनकी बेगम सही नहीं है वो नहीं जिंदा रहते क्या? और भाईजान आप बताएं, नीले कपड़े आपने पहने हुए हैं, नेक इंसान, मजा नहीं आया। वो अय्याशी की बात कर रहे हैं, आप नेक इंसान बन रहे हो जी। वेरी गुड। सबसे पहले ना खत्म होने वाली सेहतमंद जिंदगी, समझते हो? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ऐब क्या है? मौत। बड़े बड़े अय्याश आए, पतली गली से निकल गए। सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया में क्या है? फना का लेबल लगा हुआ है, खत्म होने वाली है। तो ऐसी अय्याशी का करना क्या है जिसके बाद आगे मौत हो? अरे एक बंदा फांसी का मुजरिम है यार, मुझे बताओ यार आपका नाम क्या है जिसने सही जवाब दिया? दानियाल भाई जिंदाबाद, सही जवाब दिया। ये जिंगर बर्गर खाते हैं, ये पिज्जा खाते हैं, और याद रखो जिंगर बर्गर और पिज्जा मजीद खाया तो जितना रहना था ना उतना भी नहीं रहोगे, ये जहन में बता दूं मैं। क्योंकि पिज्जा खाने वाले का इन्ना लिल्ला जल्दी होता है, रोटी खाया करें, ठीक है ना। बहरहाल देखो, दुनिया की जितनी ऐशो इशरत की चीजें हैं ना, इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? मुझे एक बात बताओ, एयर कंडीशन रूम में आपको रखा हुआ है, सुबह शाम जिंगर बर्गर खिलाया जा रहा है, सुबह शाम हर तरह का प्रोटोकॉल, लोग आपसे आए, गले मिले, यार जबरदस्त जिंदगी है यार आपकी, यहाँ आए कैसे? आप कहें यार फांसी का मुजरिम हूँ, कुछ दिनों के बाद लटका दिया जाऊंगा, तो चूंकि सियासी मुजरिम हो लिहाजा जरा प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है। फॉर्मल के फौरन पीछे हटोगे, भाई तू, मैं तेरे से गले नहीं मिलूंगा, कहीं ये नहूसत, ये सोच होगी ना आपकी, बोलोगे मैं अपने
झोंपड़े में ज्यादा अच्छा हूं यार, वो झोंपड़ा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कम से कम लटकने वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फांसी के मुजरिम को जेल से इस शर्त पे रिहाई दी जाए कि तू पहले डिफेंस के 1000 गज के बंगले में रहता था और अब तुझे कुछ दिनों के बाद लटकना है, तो हम तुझे झोंपड़ी में रखेंगे मगर फांसी की सजा क्या हो जाएगी, खत्म। फौरन कबूल करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा यार गुजारा कर लूंगा झोंपड़ी में भाई, गर्मी में गुजारा कर लूंगा, मच्छरों में गुजारा कर लूंगा, ये जो हर वक्त मौत का फंदा लटका हुआ है ना, इसने मेरी नींदें हराम कर दी हैं। तो भाई दुनिया में कुछ भी बन जाओ, फिरौन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, कानून से ज्यादा मालदार नहीं हो सकते। दो मिसालें अल्लाह ने ऐसी खानदानी बयान कर दी कि उसके बाद अब ना माल में वो जान रही और ना हुकूमत। देखो दुनिया दो चीजों का नाम है ना, मैंने बताया था ना कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए, जब हम ये लफ्ज कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, दौलत की मोहब्बत और जाह, बड़ा बनने का शौक, ये दो चीजें निकल जाएं। अगर हो तो अल्लाह के लिए हो, वो एक अलग चीज है। हुकूमत चाहिए अल्लाह के लिए चाहिए, ओहदा चाहिए अल्लाह के लिए, क्योंकि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। लेकिन दुनिया बराए दुनिया अगर है तो भाई फिरौन से ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। उसका जो जाहो जलाल था, कितनी इज्जत, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं, इतनी पावर। व फिरऔन ज़िल औताद, कुरान कहता है जिसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे। खूंटा जब गड़ता है तो खूंटा निकालना आसान नहीं होता, तभी जो कुर्बानी की गाय आजकल लोग बांध रहे हैं ना, किससे बांध रहे हैं, खूंटे से। और चोर बड़ा होशियार है, वो खूंटा छोड़ देता है, गाय उठा के ले जाता है। ऐसा ही होता है ना, उसको पता है खूंटा निकालना आसान नहीं है। तो फिरौन की सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे, ऐसा पावरफुल। और कारून कितना मालदार, इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, कुरान कह रहे ताकतवर जमात उसके खजानों की चाबियों को लेके चला करती थी। खजाने कितने होंगे, चाबियों का इतना बोझ। और ये खजाने डॉलर और रियाल के नहीं होते थे जो नोट किसी भी वक्त गवर्नमेंट चाहे तो मनसूख, वो गोल्ड होता था, सोना। समझते हो कि नहीं समझते? मगर कहां गए भाई वो फिरौन, कहां है आजकल? आप कह सकते हैं भाई दरिया में गर्क हो गया, तो ना भी होता तो भी जिंदा होता अब तक, वो तो अल्लाह ने तबाह कर दिया उसको। ना भी अल्लाह तबाह करता तो फिरौन अब तक तो वैसे भी मार्केट से शॉर्ट हो चुका होता। इतनी लंबी उम्र तो नहीं होती ना मेरे भाई। कारून अगर जमीन में ना भी धंसता तो मार्केट से अब तक शॉर्ट, इतना लंबा मार्केट में कोई नहीं रहता। तो यार क्या सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया का क्या है, फना का लेवल लगा हुआ है। तभी तो हमने शेर सुनाया था ना, अरे क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। तो सबसे पहली चाहत, जब आप ऐशो इशरत की जिंदगी चाहते हो तो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी, सेहतमंद। सिर्फ जिंदगी नहीं, क्योंकि बाज दफा जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान चाहता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, आदमी कह रहा है यार जान छूटे। सेहत वाली जिंदगी, ताकि थोड़ी लज्जत भी हो, दायमी तो हो ना। क्या ख्याल है भाई, मसूर की दाल भी खाएंगे मगर हमेशा खाएंगे। और दाल चावल खाया करो शौक से, दाल चावल जो है ना, उबले हुए चावल, मसूर की दाल। हटो बच्चों, नाम आ गया तो मैंने कहा मैं इतने शौक से खाता हूं ना मसूर की दाल और चावल, ये तौहीन होगी कि उसका तस्करा आए और मैं उसका इज्जत और एहतराम के साथ तस्करा ना करूं। पता नहीं लोग इतनी लजीज चीज को खाते क्यों नहीं है शौक से, बड़ी मजे की होती है। और हम उसमें दाल के ना पूरे पूरे डोंगे उड़ेलते हैं, ये जो है ना एक चम्मच यूं छिड़का दिया, या नहीं तैरता वाओ चावल, उसमें मजा आता है कि नहीं आता मुझे बाबा। तो खैर, तो अल्लाह ताला, हाँ अब फरिश्ता आया आपके पास, वो कह रहे हैं मांगो क्या मांगते हो। तो शुक्र है आपने मुझसे राब्ता कर लिया, तो मैंने आपको पहले नंबर पे क्या बताया कि भाई ऐसी सेहतमंद जिंदगी जिसमें मौत ना हो। तो पहला अय्याशी का स्टेप यहां से शुरू होता है। ये मिल गई तो बाकी कुछ ना भी मिले, हटो बच्चों हो गया कि नहीं हो गया, ये मिल गई तो ये भी बहुत है। अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाया कि जन्नत अगर महलात ना होते, मिट्टी के घरौंदे होते, जन्नत सोने चांदी के महल ना होते, और जन्नत में ये परिंदों का गोश्त और ये कुछ ना होता, मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ सीधे सीधे खिचड़ी होती एक बात है, फिर भी वो इस दुनिया से अच्छी थी, क्योंकि उन मिट्टी के घरौंदों में भी रहना हमेशा है और यहाँ सोने और चांदी के महल्लात से भी निकलना है। एक मिसाल दी थी ना मैंने, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मिसालें जो है ना बार बार रिपीट करके दिमाग में खोपड़ी में बैठती हैं। मैं बता रहा था ना भाई, मैं किसी के बंगले को देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर नहीं होता, क्यों, इसलिए बंगले वाले को मैं पहले नोट कर रहा होता हूँ ठीक है ना, कि मकान तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन रहने वाले की उम्र ज्यादा लग नहीं रही है, इनका 10-12 साल में इन्ना लिल्लाह हो जाए। तो इतना खूबसूरत बंगला, वो मुझे बता रहे होते हैं, ये दीवारें देख रहे हैं भाई, बड़ी मजबूत दीवारें, दिल चाहता है मैं उनकी हड्डी पकड़ के मोड़ूं। बोलो ये हड्डियां देख रहे हो आप, इनमें जान नहीं है, इनमें वो सरिया नहीं डाला, तो इस मकान की बुनियादों में आपने सरिया डाला है। क्या ख्याल है भाईजान? अच्छा मेरा बच्चा भी भाईजान भाईजान करने लगा, ओ भाई इस तरह बोलता है छोटा बच्चा। तो सबसे पहली चीज आप उस फरिश्ते से अय्याशी के लिए क्या मांग, अभी मैंने आपको अंडे वाले बर्गर से निकाल दिया है, थोड़ा सा हम किसके
की तरफ आ रहे हैं, जिंगर की तरफ अभी थोड़ा थोड़ा चल पड़े हैं। सोच को ऊपर, मैंने तभी कहा था ना 1 घंटा उससे मांगना सोचने के लिए खाली। तो पहली चीज आपने क्या खानदानी मांगोगे? अब फर्ज कर लो आपको वो मिल गई, अभी कोई आपको आके बता दे कि यार तुम्हें ऐसी जिंदगी अल्लाह ने दे दी है कि, या कोई ऐसी वैक्सीन इजाद हो गई है, डॉक्टरों ने इजाद कर ली है कि वो ऐसी वैक्सीन है कि इंसान कभी बीमार नहीं होगा, और मौत को उस वैक्सीन ने क्या कर दिया है, हमेशा के लिए खत्म, करोड़ों अरबों रुपए में भी मिल रही होगी, तो लोग, रियाज मलिक को कह दिया जाए कि बहरिया टाउन आपका है, आप एक इंजेक्शन हम आपको दे रहे हैं, वो लगेगा तो आप हमेशा जवान भी रहोगे और कभी मौत भी नहीं आएगी, इसके बदले में आप बहरिया टाउन दे दो। फौरन से पहले देगा कि नहीं देगा? क्या ख्याल है भाई? फौरन से पहले। और हमेशा का मतलब क़यामत तक की जिंदगी, हमेशा नहीं, फिर भी लोग सौदा कर लेंगे। यार जब तक ये कायनात है हम जिंदा रहेंगे। तो भाई ये इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। आपको पता है बाज दुनिया में अरबपति लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अरबों रुपए छोड़कर गए हैं कि हमारी बॉडी को सेव रखा जाए, इसे गले ना दिया जाए, और उनका ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवा इजाद हो जाए कि मुर्दों को जिंदा करना मुमकिन हो। तो अब उनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ना वो पैसा खर्च हो रहा है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं। गरीब अच्छा है, आराम से खा पी के तमीज से मर जाता है वो ठीक है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो मुर्दों को जिंदा करेंगे, तो हमसे अगर मशवरा लिया तो हम कहेंगे हजरत इन्होंने बड़े पैसे खर्च किए थे, एक दफा इनको जरा जिंदा कर लें, आपका मोजज़ा भी जाहिर हो जाएगा और बंदा भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन वो मसला ये है कि वो फिर दोबारा मार देते थे, ये फॉल्ट है, ठीक है ना। फॉल्ट का मतलब इंसान में ये फॉल्ट है कि उसको अगर मौत के बाद जिंदगी मिलेगी तो भी थोड़ी देर के लिए, वो जब जिंदा करते थे ना, फिर चल वापस, अब ज्यादा ऐसा नहीं है कि अब तू घूमेगा बड़े आराम से, वापस रिवर्स वही हो जाएगा जो उस आदमी ने कहा था ना, उन दो को पुराने वाली हालत पे ले आओ दोबारा। तो सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या है मेरे भाई? हमेशा की जिंदगी, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी सबसे बड़ी जिंदगी। ये मैंने औरत का जिक्र इसलिए कि खवातीन बयान में बैठी होती है, उनको शिकायत होती है हमारे टॉपिक पर तो बात ही नहीं होती, तो मैंने बता रहा हूं भाई ये बात सबके टॉपिक पर है, इसकी जरूरत मर्दों को भी है और खवातीन को भी इसकी जरूरत है। तो अब क्या होगा उसके बाद? अब अगला सवाल आपसे करता है, और बता क्या चाहिए? अब बताओ क्या मांगोगे? अब थोड़ा सा तो मेंटल लेवल आपका ऊपर हो गया है ना। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या मांगो? वही है ना, सारी चीजें मुझे ही लिख के देनी पड़ेंगी। अब हर एक की सोच अलग हो सकती है, किसी की तरजीहात कुछ होती है, किसी की तरजीहात, तो बोलो क्या मांगोगे दूसरे नंबर पे? बोलो यार खुदा के लिए जल्दी बोलो, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक बोलोगे नहीं। हमने तो आपको सिखाना है ना, एक समझाना है। तो ऐसे बयान में करता रहूं तो यार ये क्या मजा? जो मांगू मिल जाए तो वो बोलेगा कम वक्त यही तो बोल रहा हूँ कि कुछ मांगना, हर ख्वाहिश तो कह रहा है मैं यही इसी काम के लिए तो आया हूं, ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर तू बोलेगा हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। फरिश्ता के मीटर शॉर्ट हो गया ना, फिर याद रखो फिर वो उल्टा भी करता है। हाँ, वो जब इतनी पावर के साथ आया है ना, उसका मीटर घूम गया। अभी कह रहे हैं फरिश्तों में बोलूंगा मुझे ऐसा बना दो कि जो मांगू मिल जाए, तो कह रहा है ऐसा बन गया ना, अब मांग। दूसरे नंबर पे क्या मांग? क्या बोल रहा है भाई? अरे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, तो इससे बड़ी कोई देखिए, ये तो दुनियावी, ये तो उखरवी नेमत है ना। अभी तो वो अय्याशी की बात कर रहा है, ये तो उन लोगों को समझ में आएगी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, तो यकीनन बहुत बड़ी नेमत है ये, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं जनरली आम आदमी की सतह की बात कर रहा हूं, नहीं वो नहीं, दुनिया की अय्याशी, जो अय्याशी करने वाले लोग जिस किस्म की चीजें मांगते हैं अल्लाह के बंदो, उसकी बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया पे हुकूमत मांगोगे, चलो ये भी एक सोच हो सकती है, और ना खत्म होने वाला पैसा, ना खत्म होने वाला पैसा, चलो ये भी सही है। स्पेसिफिक चीजें मांगो ना, मुतय्यन चीजें मांगो। और देखो मेरी नजर में दो चीजें जो इसके बाद आपके लिए सबसे, हर आदमी में इसमें तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है। इसके बाद इंसान अच्छी शरीका हयात मांगता है जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है। आप अगर बोलोगे पैसा मांगूंगा तो वो भी मिल जाएगी मुझे, ना 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 ना, ये हदीस से भी साबित है कि दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नेक औरत है। अगर दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दौलत होती तो आप उसको जिक्र करते ना। आपने कहा मैं सबसे ज्यादा दौलत मांगूंगा। मैंने बड़े बड़े दौलतमंद देखे हैं जिनकी बेगमें उनको जूते तबीयत से लगा रही हैं, समझ रहे हो? नहीं आ रही समझ में? तो आप ये समझोगे ना दौलत मिल जाएगी तो फिर ये नेमत तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इस खुशफहमी में मुब्तला होने की चंदा जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी, क्योंकि इंसान अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप जवान भी हो, हमेशा भी जिंदा रहोगे, लेकिन आप होगे अलोन, ठीक है, अकेले। जिंदगी का मजा किरकिरा। इंसान को अच्छी लाइफ गुजारने के लिए सबसे अहम तरीन चीज जो उसके लिए चाहिए वो क्या है? अच्छी शरीका हयात। औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत। मैं होऊंगा तो दूसरे नंबर पे मांगूंगा भाई ये होलसेल के हिसाब से चाहिए
अब आपको इस पे तकलीफ हो रही है तो आपका अपना हेडेक है भाई। क्या चाहिए भाई? 50-60 और ज्यादा कर लो, 70,000 कर लो, वो तो देने के लिए तैयार है ना। तीसरे नंबर पे क्या मांगोगे? बोलते क्यों नहीं यार, मैं बयान छोड़ के चला जाऊंगा। जब तो अभी फरिश्ता बैठा हुआ आपको चीजें दे रहा है, उसमें इतनी सुस्ती कर रहे हो, तो आगे जब मेहनत से जन्नत कमाने, फ्री फोकट की जन्नत कबूल नहीं है भाई। फ्री फोकट में फरिश्ता आगे कह रहा है ये तो वो बोलते हुए आपको तकलीफ हो रही है, तो जब वो कहेगा ये अमल करोगे तो फिर मिलेगी, तो अमल कहां से करोगे? अरे फरिश्ते ने आके आपको बोला कि ये चाहिए, तो वो चाहिए में आप कितना टाइम लगा रहे हो? बोलने में, अमल में कितना टाइम लगाओगे? जल्दी बताओ। तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे इंसान को अच्छे घर की जरूरत होती है। रोड पे थोड़ी रहेगा हैं? अबे सारी जिंदगी क्या शरीका हयात को लेकर रोडों में घूमेगा? क्या ख्याल? वो जगह तो हो ना जहां असल घर तो हो। तो तीसरे नंबर पे क्या मांगेगा वो? घर। लग्जरी जगह पे घर हो, डिफेंस में, मलीर कैंट में, या और कोई अच्छे डीएचए बन रहा है, अभी बहुत दूर बन रहा है, या और कोई सोचने पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमेरिका में चाहिए मुझे, ठीक है ना? सोच के आप बोलोगे भाई मुझे स्विट्जरलैंड में चाहिए। इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए। इतना बड़ा भी ना कर दो कि सोचने पर फुटबॉल का मैदान बन जाए, वो घर ही ना रहे भाई इतना बड़ा घर मुझे चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसमें बाग हो, सही है ना, जिसमें हर तरह की एंटरटेनमेंट का सामान, और लग्जरी घर में खादिम भी होते हैं, खिदमत गुजार, ये सारी। क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, जरूरी नहीं कि पैसा हो तो आपको इस तरह का घर मिल जाए। तो ऐसा खूबसूरत खानदानी मुझे क्या चाहिए? घर चाहिए। फिर पैसा भी चाहिए, इसके बाद आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? शुरू। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई आपको मोटिवेट करने के लिए किसी अंग्रेज का लेक्चर आप सुन रहे हो, वो किस तरह से मोटिवेट करते हैं? भाई अच्छे काम किया करो, थैंक यू किया करो, अच्छे, यही ना मैनर्स सिखा रहे होते हैं ना। अरे गोरे क्या सिखा रहे होते हैं भाई? मैनर्स, तमीज से बात किया करो, थैंक यू किया करो, मुस्कुरा के बात, और ये वो, अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखो। ये सब मैनर्स पैदा करने के लिए उनके यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, ठीक है ना, कि विजन बनाया करो, ये किया करो, वो किया करो। मोटिवेट कैसे करते हैं? उनके पास क्या है मोटिवेशन के लिए? बताओ। कोई ढंग की बात इन लोगों के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल तो मैं अक्सर देता हूं, मुमकिन है पुराने लोग बोर हो जाएं कि मुफ्ती साहब ये मिसाल बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जो अच्छी मिसाल होती है ना, वो अगर कई बार भी बयान कर दी जाए बात समझाने के लिए, तो गलत नहीं है। क्योंकि आज किसी और उसमें मैं बयान कर रहा हूं ना, पैराए में। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर एक मिसाल लाजमी देते हैं कि देखो दुनिया से हम सब ने जाना है, जब हम दुनिया से जाने वाले होंगे तो आप पीछे मुड़ के देखना चाहोगे कि मैंने लाइफ कैसी गुजारी। गंदी लाइफ गुजरी होगी, चोरियों में, चुकारियों में, चर्स में और उल्टी सीधी हरकतों में, कानून तोड़ने में। तो आप ये सोच के दुनिया से जाओगे कि मैंने कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, सुकून से नहीं मरोगे आप। और अगर आप कुछ अच्छा करके चले गए, कोई इंसानियत की खिदमत करके चले गए, कुछ अच्छा करके चले गए, फिर जब आप मौत के वक्त पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि मीनिंगफुल लाइफ मैंने गुजारी है। इस मीनिंगफुल लाइफ से आपको इत्मीनान होगा कि मेरा दुनिया में आना जाया नहीं गया। इस इत्मीनान के साथ आप दुनिया में जाओगे। गोरे बैठे हुए होते हैं, हिंदू बैठे होते, कहते हैं नारे तकबीर, उनका जो भी नारा तक, क्या खानदानी मिसाल दे दी, और सब में एक बिजली की तरह एक जज्बा भर जाता है। बड़े बड़े खानदानी आदमी वो बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, वही कहते हैं दुम में आग लगा दी। वो मिसाल ये देते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि दो चिड़िया जो है ना उड़ती भी जा रही थी। दो चिड़ियाएं क्या कर रही थी? उड़ती भी जा रही। उनका ख्याल था हमारी स्पीड बहुत तेज है, ऊपर से एक जेट तैयारा गुजरा, जूम करता हुआ ना, इतनी स्पीड से गुजरा कि वो छोटी चिड़िया के तो पर ही झड़ गए और वो लुढ़खड़ाने लगी। तो वो छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से पूछती है कि आंटी, ये भी हमारी तरह का उड़ने वाला परिंदा है, लेकिन इसकी स्पीड में और हमारी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसकी इतनी स्पीड की वजह क्या है? नहीं यार क्या करें यार, ये इतनी स्पीड से गया कि हमें हिला के रख दिया इसने, क्या वजह है? तो वो जो आंटी चिड़िया थी ना, अव्वल तो उसने आंटी का लफ्ज सुनते ही टेंशन में आ गई होगी, लेकिन उसने कहा कि देखो फर्क इसमें और हम में ये है कि इसकी दुम में आग लगी हुई है, हमारी दुम में आग, बोलो भाई, आग लगी होती है ना पीछे। अगर कोई हमारी दुम में आग लगा दे ना, ठीक है, तो दुम में आग, ये मोटिवेशन का काम यही होता है कि आपको या तो मिर्चें लगा दे या आपकी दुम में आग लगा दे। आग लगेगी तो भागोगे, फिर जिस सिमत में कर देगा ना आप भागते चले, फिर इतना भागोगे कि लोगों की पकड़ाई में नहीं आओगे आप। तो वो चिड़िया ने कहा कि बहन इसकी दुम में आग लगी हुई है और हमारी दुम में आग नहीं लगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर का काम यह होता है कि अच्छे अमल पे लाने के लिए आपकी दुम में आग लगाए। दुम में आग लगाने के लिए मिसाल दी जाती है कि भाई देखो मरना सबने है, जब मरते हुए पीछे मुड़ के देखोगे तो मीनिंगफुल लाइफ होगी, तो सुकून से मरोगे। और मीनिंगफुल लाइफ पान गुटकों में कम वक्त और चोरियां उचक्कों उल्टे कामों में लगा दी तो सुकून की मौत नहीं होगी। इससे हिंदुओं की और अंग्रेजों की दुम में क्या लग जाती है? आग। हालांकि इसमें आग लगाने वाली कोई चीज, बोलो भाई, नहीं है, क्योंकि उनके पास आग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, तो ऐसी फालतू मिसालों से समझा रहे होते हैं बात। मैंने जब ये मिसाल सुनी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, यूट्यूब पे वो मिसाल दे रहा था, मैं नहीं सुनता मोटिवेशनल स्पीकर को,
एक आध दफा किसी ने कोई क्लिप भेजा तो कि भाई ये मिसाल बड़ी अच्छी है, सुन लें, तो उसमें ये चीजें सामने आई। मैंने कहा इस मिसाल में सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है, कोई अकलमंद बैठा हो बोले यार जब मर ही रहे हैं तो भाड़ में जाए, अच्छी लाइफ गुजारी के बुरी लाइफ गुजारी। क्योंकि इंसान हमेशा फ्यूचर का सोच के खुश होता है, पास्ट का सोच के खुश नहीं होता। क्या हो गया? देखो एक आदमी के 50 साल एयर कंडीशन रूम में गुजरे, अय्याशी में गुजरे, उसे बताया गया कि कल आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, है भाई? वो फ्यूचर पास्ट का सोच सोच के खुश हो रहा है, यार बड़ी मीनिंगफुल लाइफ मेरी, यानी ऐश व इशरत वाली लाइफ मेरी गुजर, चलो मैंने इतना अच्छा खाया, इतना अच्छा पिया, ऐसी लाइफ गुजारी, कल लटक जाएंगे तो क्या हो, कोई बात भाई, 50 साल तो अच्छे गुजर गए ना, ऐसा होगा? बोले यार ये क्या यार, कल लटक जाऊंगा मैं। और एक आदमी वो है जिसकी सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी, बल्कि वो फांसी के यानी घाट में गुजरी है, उसको बताया गया कि तुम लटकने वाले हो और टेंशन में गुजरी, आज ऐलान होता है कल तुम्हारी रिहाई, तो कौन खुश होगा? फ्यूचर का देख के इंसान हमेशा खुश होता है, पास का सोच के खुश नहीं होता। उस पास का सोच के खुश होता है जिसका फ्यूचर पे असर हो रहा हो। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अभी पर्चा नहीं आया, पास में आपने तैयारी फुल की है, पूरी किताब रट ली आपने, आपको पता है कि पूरी किताब के अंदर से ही आएगा ना पर्चा, और किताब हमने पूरी याद कर ली है, तो पास्ट आपका मेहनत में गुजरा है, अब आपको पता है कि फ्यूचर मेरा अच्छा होगा, इस पास का फ्यूचर पे क्या होने वाला है? असर पड़ेगा। अब पास्ट टेंशन में भी गुजरा है ना, कोई बात नहीं यार, मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है। क्या ख्याल है भाईजान? और अगर पास्ट में आपने तैयारी नहीं की और आपको पता है पर्चा सामने आने वाला है, हाथ पांव फूलना शुरू, वो पास की अय्याशी और उसकी खुशियां आपको खुशी नहीं देंगी। तो भाई आपने मीनिंगफुल लाइफ गुजारी, अगर उस मीनिंगफुल लाइफ की बेस पे आगे आपको कोई अच्छी लाइफ मिल रही है तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यार मेरी मीनिंगफुल लाइफ की तो सारी ऐसी की तैसी हो गई, मुझे तो उसका कोई अजर ही नहीं मिल रहा। साला वो टमाटर बेचने वाला मादरत के साथ, वो चोर उचक्का, वो भी साथ वाली कब्र में उसी प्रोटोकॉल के साथ, और मैंने इंसानियत के लिए इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए कुर्बानियां नहीं कम बात, वही कब्र में फेंक के जा रहे हैं मुझे। वो मेरा भाई जिसने बाप को कभी पूछा नहीं है भाई, जो हमेशा बाप को सताता रहा, उसको भी वही कब्र मिल रही है, और मैंने अपने बाप के लिए इतनी कुर्बानियां दी, वही बाप आज मुझे साथ वाली कब्र में डाल के जा रहा है। तो मेरी तो जिंदगी और मेरी कुर्बानियों का बेड़ा गर्क हो गया। क्या मोटिवेशन मिलेगी भाई इससे दुम में आग लगेगी? क्या हो गया? इस किस्म की ये जो गैर मुस्लिम मोटिवेशन देते हैं ना, इनकी मिसालें इससे ज्यादा नहीं होती। इंसान को खुदा की कसम, इंसान का बच्चा बनाने के लिए आखिरत का तसव्वुर के बगैर इंसान को इंसान का बच्चा बनाना मुमकिन है ही नहीं। नामुमकिन है किसी को अच्छा इंसान बना